In this session, the discussion is on basic electrical engineering. So basic electrical engineering, which is called BEE, and this subject or this topic, basic electrical engineering, is a basic of electrical engineering. जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसका एक बेसिक है, एंड दिस वाज जनरली taught in the curriculum of Bachelor of Technology, that is BTech और इंजीनियरिंग में जो है ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है. ये क्या चीज़ है, कैसा है, और ये एक सब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल के जो भी फंडामेंटल्स हैं, द फंडामेंटल्स विच आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट इज़ बीइंग टॉट हियर, दैट इज़ बीइंग व्हाट डिस्कस्ड हियर. इसमें डिस्कस करेंगे. तो जो भी मॉड्यूल देखें, इफ़ वी आर गोइंग द मॉड्यूल्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स है, डिफरेंट व्हाट द यूनिट्स ऑफ द दिस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो मॉड्यूल्स है, कैसे कैसे किन किन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे. तो वी विल डिस्कस दैट DC सर्किट, it means that direct current circuits and AC circuits, or the DC circuits as well as AC circuits, and magnetic circuits and transformers. So what are DC circuits, what are AC circuits, what is magnetic circuits and transformer, and what is electrical machines. So what is the machine which is electrical in nature, and what is electrical installations, and safety and production. So this is called, in this way, the complete curriculum or the complete structure grid has to be defined. कई जगह पर, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में 4 क्रेडिट का होता है, कई जगह पर 5 क्रेडिट का, डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइनिंग ऑफ द मॉड्यूल. जिस तरीके से जो कोर्स स्ट्रक्चर का जो भी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में डिस्कस किया होगा, वह होता है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या सिलेबस रखा हुआ है. So it means that here we are going the lump sum topics of जितने भी जो approximately topics of what basic electrical engineering BEE. So here what we were discussing, जिसमें कुछ lectures होते हैं, कुछ tutorials होते हैं, like this way. और in general sense also, in general discussions also, ये जानकारी और जो है एक information और एक general knowledge रखने के point of view से भी electrical engineering के जो fundamentals हैं वो ये. Now what is DC circuits? In DC circuits, what we are going to discuss in the sessions also, electrical elements like RLC. In our next sessions और भी जितने भी sessions करते हैं, उनमें भी resistance, inductance और capacitance के बारे में बताते हैं, which is supposed to be the electrical elements. What is resistance, what is inductance, and what is capacitance? They are called what? Electrical elements, which resembles either to resistance, which is shown by this, and inductance, which is shown by this, and the symbolic representation of capacitor is this, like resistance is having R and inductor is having a letter representation like L, and capacitance is having a letter representation by C. Resistance is measured in ohms, whereas inductance is measured in henries, and a capacitor that is measured in farad. So these are called the electrical elements, RLC. We will discuss in this DC circuit voltage and current sources. There are various sources which are called to be as the energy sources. बहुत सारे sources हैं जिनको energy sources बोलते हैं, जिसमें voltage source और current source के बारे में भी जानेंगे. और ठीक इसी तरीके से Kirchhoff's current law and voltage law, Kirchhoff's first law which is also called Kirchhoff's current law, or Kirchhoff's second law which is also called Kirchhoff's voltage law, node law which is called Kirchhoff's current law, point law which is also called Kirchhoff's current law, Kirchhoff's first law is also called Kirchhoff's current law, junction law is also called Kirchhoff's current law. And Kirchhoff's voltage law is what? Applicable to the mesh or the loop. That is why it is called Kirchhoff's loop law, Kirchhoff's mesh law, and Kirchhoff's second law, like this way. तो इसीलिए जो है क्या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के RLC यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस हैं, और क्या वोल्टेज और करंट सोर्सेज हैं, क्या Kirchhoff's करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ है, which is discussed in DC circuits. And the next, the circuit analysis. What is the basically circuit? A circuit is the what? Closed trajectory, closed geometrical projection of or trajectory of any electrical elements or electronic element that is supposed to be the circuit element circuits. And the analysis, examination, evaluation, and all the mathematical formulation and mathematical sketching of this circuit is supposed to be the circuit analysis. That what element, कौन सा element क्या काम कर रहा है, इस बारे को जानना, इसीलिए circuit analysis कहलाता है. DC excitation. Excitation here means input. Excitation means input and response means output.
So DC excitation means if any of the circuit that is going to feed with the excitation input which is of DC nature, means direct current nature, that is why it is called DC excitation. What would be the analysis in that case when any circuit is feeded with DC excitation? मतलब कोई भी सर्किट जब DC excitation या DC इनपुट से फीड किया जाएगा तो वो किस तरीके का परफॉर्मेंस करेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या चीज़ें निकल के होंगी आगे. Theorems will also discuss superposition theorem, Thevenin's theorem, Norton's theorem, maximum power transfer theorem, star to delta connections. In my theorem portion, in my जो मैंने नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस वाला जो भी टॉपिक किया है उसमें जो है सुपरपोजिशन, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन मैक्सिमम पावर वहाँ पे भी डिस्कस किए हैं. तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE में भी हैं. और स्टार और डेल्टा कनेक्शंस, वटेवर कनेक्शन किसी भी तरीके की जो वायर वाइंडिंग्स हैं, मटेरियल वाइंडिंग्स हैं, दैट में बी आइदर इन द टर्म्स ऑफ स्टार और आइदर में बी इन द टर्म्स ऑफ डेल्टा. अगर कोई भी किसी भी तरीके की जो है सर्किटरी कर रहे हैं तो या तो वो कनेक्शन जो होंगे, कनेक्शन या तो स्टार में लगा होगा या होगा वो डेल्टा में लगा होगा. तो किस तरीके से स्टार को डेल्टा में बदलते हैं और डेल्टा को स्टार में बदलते हैं, इस तरीके का डिस्कशन भी DC सर्किट में करेंगे. अब जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो इनर्शियल एलिमेंट्स हैं. इनर्शियल एलिमेंट मतलब ये है कि अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं. तो इंडक्टर जो है वो अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को जो है स्टोर करता है. और जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है वो है हाफ Li². तो इंडक्टर इज इनर्शियल टुवर्ड्स करंट. इनर्शियल इज मतलब इंडक्टर डजंट अलाउ द सडन चेंज ऑफ द करंट फ्रॉम इटसेल्फ. अगर इंडक्टर में ऑलरेडी कहीं पे करंट बह रही है और दैट इज इंडक्टर इज अंडरस्टैंडिंग दैट, और इसी तरीके से जो है अगर सडनली करंट को चेंज कर दे तो इंडक्टर विल नॉट अलाउ इमीडिएटली. और न्यू वर्जिन इंडक्टर, अगर कोई नया इंडक्टर भी है, कोई इंडस्ट्री से लाए इस तरीके की कुंडली से हिंदी में बोलते हैं, इंडक्टर को लाएं और उसमें एनर्जाइजेशन कर रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं, एनर्जी भर रहे हैं, ऊर्जा भर रहे हैं, ऊर्जाकरण कर रहे हैं उसका, तो इसीलिए पहले जो है करंट के द्वारा जो है रेसिस्ट किया जाएगा. इनिशियली इट विल नॉट अलाउ द चेंज ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, देन आफ्टर इन द स्टेडी स्टेट इट विल सेटल डाउन विद द करंट. सो हाफ Li² जो है एनर्जी होती है किसी भी जो है किसी भी इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी लॉक होती है या जमा हो जाती है, स्टोर हो जाती है. कैपेसिटर के अंदर जो होती है वो जमा होती है इलेक्ट्रिकल, दैट इज कॉल्ड EC इज इक्वल टू एनर्जी इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV². बिकॉज कैपेसिटर इज इनर्शियल टुवर्ड्स वोल्टेज, कैपेसिटर इज इनर्शियल टुवर्ड्स वोल्टेज. कैपेसिटर डजंट अलाउ एकदम से कैपेसिटर इमीडिएटली जो वोल्टेज चेंज हो रहा है उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता. हाफ CV² है. और इतनी और जो जिस तरीके से मैग्नेटिक एनर्जी है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रिकल और जो है कि चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर में. सो कैपेसिटर इज व्हाट गोइंग टू लॉक व्हाट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेयर एज द मैग्नेटिक एनर्जी, और द मैग्नेटिक एनर्जी चार्ज स्टोर हियर इन द कैपेसिटर, बट मैग्नेटिक एनर्जी इज गोइंग टू स्टोर इन द इंडक्टर. सो बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर बोथ आर इनर्शियल एलिमेंट. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वी विल डिस्कस इन DC सर्किट कि किस तरीके से स्टार को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करते हैं और डेल्टा को स्टार में. सपोज दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ अ स्टार कनेक्शन, आइदर दिस और आइदर दिस, दीज बोथ आर स्टार कनेक्शन, एंड डेल्टा कनेक्शन इज लाइक दिस, जैसे डेल्टा होता है ट्राइंगल की तरह वैसा. तो ये कनेक्शन कैसे इसमें बदलेगा डेल्टा में, और डेल्टा किस तरीके से स्टार में बदल सकता है, किन इक्विवेलेंट्स के साथ. सो वी विल डिस्कस हियर इन दिस स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कनेक्शन. One more thing is important, excitation is called input and response is called output, and source is the one which is going to deliver energy. Source वो होता है जो एनर्जी या ऊर्जा या पावर को डिलीवर करे, करंट को डिलीवर करे, that is called what, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स, चाहे वो डिपेंडेंट सोर्स हो और फिर इंडिपेंडेंट सोर्स हो. लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्स होता है वो प्योरली दैट इज गोइंग टू डिलीवर द एनर्जी, जो एनर्जी को डिलीवर करता है ना. This is all about the DC circuits, that what direct current circuit is, or the circuit which is having a nature of what, DC. So what is the circuit which is having a nature of AC? What is the circuit which is having a nature of AC? This is called representation of sinusoidal wave. Let us suppose there is a wave. Let us suppose there is a wave. Let us suppose there is a what, wave. Let us suppose this is a wave. This is a purely sinusoidal wave in which the wave is continuously varying with respect to some magnitude. Let us suppose voltage or current. So this is called the instantaneous value.
Instantaneous value v is equal to v naught sin omega t it is called, because when time is going to change, जब समय को बार बार बदल रहे हैं तो sin 0 डिग्री अलग होगा, sin 10 डिग्री अलग होगा, sin 20 डिग्री, sin 30, sin 40, sin 90 पे v sin 90 डिग्री 1, इसका मतलब v इज इक्वल टू v नॉट हो जाएगा ऐसे समय पर। तो इसीलिए जब समय बदलता रहेगा तो एम्पलीट्यूड भी बदलता रहेगा। एक टाइम पे कट ऑफ आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव हाफ साइकिल की ओर बढ़ा जाएगा, और ये कंप्लीटली एक साइकिल है। दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी अ कंप्लीट साइकिल। तो इस तरीके से हाउ द वैल्यूज वेरिंग इन द व्हाट इन द साइनोसॉइडल वेव, कॉन्टिन्यूसली साइनोसॉइडल वेव, एंड साइनोसॉइडल वेव विच इज व्हाट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। साइन वेव इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, बट कोसाइन वेव हियर इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद जीरो। Cosine wave here is not going to start with zero, it is starting from here something like. So because पहले से ही start हो गई होगी cos 0, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 0 is supposed to be what 1. There is some preset, there is some threshold, there is some value which is already stored. So like this जो है representation of sinusoidal wave here is what is peak and RMS value. Peak value is this. This is V naught is the peak value, और Vm it is also written sometimes. तो इस तरीके से peak value ये है, और RMS वैल्यू इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर कभी भी जो DC वैल्यू है अगर उसको बोलेंगे तो एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड DC वैल्यू, एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड DC वैल्यू। एंड व्हाट इज RMS वैल्यू? RMS वैल्यू इज AC वैल्यू। अल्टरनेटिंग करंट वैल्यू इज सपोज टू बी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एंड नाउ व्हाट इज फेजर रिप्रेजेंटेशन? The difference between or the comparison between DC and AC is this only. Whenever the supply is of AC, like if we represent AC, then we will represent AC by like this, a purely sinusoid this one, and here some circuitry is attached. So likewise a phasor representation, it means that whenever DC source is connected to any of the what load, it means there is the arithmetic sum. Arithmetic sum means 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 3 plus 2 5. Likewise अगर सीधा एक प्लस एक जितना वोल्टेज सोर्स में है उतना ही लोड में सारे जितने भी लगे हुए हैं उनके जोड़ के बराबर हो जाएगा। लेकिन AC में ऐसा नहीं होता है। whenever see alternating current, whenever see AC, think of phasors, then always think of and always look for the phasor sum. Look for the phasor sum. It means that phasor representation is also there, means the component by which the source is made, that is what a phasor representation. Phasor representation means a angle between or the phase between voltage and current. Voltage and current, here voltage and current, voltage and current, this is same phase. Let us suppose voltage and current, this is in phase, and if this is voltage and this is current, if we will show here like this, then current is leading from voltage, let us suppose. And if we are going to see like current is here and voltage is here, the current is going to lag, मतलब कोई एक क्वांटिटी पिछड़ रही है, कोई किसी को पिछाड़ रही है, जो पिछड़ रही है वो लीड कर रही है, जो पिछाड़ रही है वो लैग कर रहे हैं. So it means that phasor representation is represented by this. We will see in this AC circuit session. And power is what in DC circuit, the power is what represented to be as like P is equal to V into I, voltage into current, or P is equal to I square R. So this is the correct representation, and this P is represented in terms of watt. But in AC circuit, the power is represented to be as what? Either in terms of P, either in terms of Q, or collectively it is in terms of S. S is called the complex power. This is called complex power. Complex power, which is represented by S is equal to what? P plus JQ. Or we may say S is equal to VI conjugate. Conjugate here means the change. The current is continuously changing with respect to voltage, and that constituted complex power, which is S. And this is active power. P is called active power. P is called supposed to be here as active power, but Q is here reactive power. Q is here reactive power or compensatory power. Means compensatory power which is necessary to what? Locate or to flow the active power, which is called to be as reactive or compensatory power, and both constituted to form the complex power. S is equal to P plus JQ, where P is the real part and Q is the reactive part. P जो है, जो पावर एक्टिव पावर है, रियल पावर है, उसको बोलते हैं वॉट में उसकी यूनिट होती है, और इसी का बिल आता है जो भी घर में आता है, पावर कंजम्पशन जो होता है वो पी में हो रहा होता है. और ठीक इसी तरीके से Q इज कॉल्ड द कंपनसेटरी पावर. सो इसी तरीके से पावर फैक्टर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय cos फाई, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय cos फाई. cos फाई जो है वो
पावर फैक्टर कहलाता है। और सिंगल फेज एसी सर्किट, और सिंगल फेज एसी सर्किट भी होता है कि अगर इफ बिकॉज जो है कि या तो वन सिंगल फेज हो सकता है या कोई चीज़ 3 फेज हो सकती है। सिंगल फेज जनरली जो होता है वो होता है डोमेस्टिक लोड के लिए, एंड 3 फेज इज जनरली यूज फॉर मोर रेटिंग लोड, जहाँ पर ज़्यादा रेटिंग चाहिए होती है, ज़्यादा पावर। रेटिंग मीन्स वैल्यू, रेटिंग मीन्स मोर क्वांटिटी ऑफ वोल्टेज करंट पावर, तो इसीलिए 3 फेज वहाँ पे यूज होता है। सो हियर सिंगल फेज एसी सर्किट वी विल डिस्कस ऑल्सो with R load when the load is only resistive, when the load is resistive and inductive, when the load is resistive, inductive and capacitive as well. अब resonance क्या होता है? Resonance is the condition when XL is equal to XC. Whenever there is a condition of XL is equal to XC means the inductive reactance. What is inductive reactance XL? Inductive reactance is the opposition by the conductor in the path of current. Like resistance is the opposition in the path of current by the resistor. इसीलिए XL है, और XC जो है कैपेसिटर के द्वारा किया गया जो भी करंट के रास्ते में अवरोध है, दैट इज कॉल्ड XC. When both are supposed to be equal, then at that time resonance occur. और अगर रेजोनेंस को देखें तो रेजोनेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है, लेट अस सपोज जेट इम्पीडेंस इज इक्वल टू R प्लस J ऑफ XL माइनस XC. लेट अस सपोज अगर XL XC के बराबर हो जाएगा तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, रिएक्टिव क्वांटिटी, और Z सिर्फ R के बराबर बच जाएगा। इसका मतलब इम्पीडेंस विच इज कलेक्टिव अपोजिशन बाय रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर, वो सिर्फ रेजिस्टिव अपोजिशन तक रह जाएगा। ऐसी कंडीशन जो होती है वो रेजोनेंस की होती है। रेजोनेंस 2 प्रकार का होता है, सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस। ये सब जब भी ऐसी सर्किट करेंगे तो देन वी विल डिस्कस ऑल्सो 3 फेज बैलेंस सर्किट्स। अब 3 फेज बैलेंस सर्किट्स में जनरली क्या होता है कि एक फेज ये रहा, 2 3 फेज और एक न्यूट्रल हो गया। सो दिस इज कॉल्ड, जो भी फेज में बहने वाली करंट या वोल्टेज अगर है सस्टेन तो उसे फेज क्वांटिटीज कहते हैं। फेज, और अगर 2 फेज के बीच में जो भी चीज़ें होती है वो लाइन क्वांटिटीज कहलाती है, चाहे वो लाइन वोल्टेज हो या लाइन करंट हो। तो इस तरीके से जो है वी विल डिस्कस हियर विद व्हाट, विद द 3 फेज ऑल्सो। एंड नाउ द पावर मेजरमेंट एंड ट्रांजिएंट एनालिसिस। Whenever ट्रांजिएंट मीन्स अगर कोई भी जैसे इनपुट अगर किसी सर्किट में डाला या इनपुट अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल जो भी कमीशनिंग या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डाला तो इनिशियली एवरीथिंग टेक्स टाइम फॉर द ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स कोई भी एनर्जाइजेशन जब तक हो रहा है किसी चीज़ का, कि जब तक स्टेडी फ्लो में ना आ जाए, दैट इज सपोज टू बी ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो कोई भी एनालिसिस अगर इफ some input or some circuit or some system is subjected to energy, अगर कोई भी सिस्टम को एनर्जी दिया, एनर्जाइजेशन किया में या कोई भी ऐसे ऊर्जाकरण किया तो उस समय इनिशियली द ट्रांजिएंट विल कम, देन स्लोली दीज ट्रांजिएंट विल सेटल डाउन एंड द स्टेडी मीन्स स्थिर जो ऑपरेशन है दैट विल कम इनटू प्ले। नाउ दीज बोथ आर व्हाट DC एंड AC, which is DC circuit is the one which is having a nature supply which is DC, which is constant with respect to time, but AC is the supply which is continuously changing with respect to the time. So these are, we will discuss in these 2 modules or these 2 topics units we will discuss in what basic electrical engineering में करेंगे। मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या होता है कि इनिशियली EMF जनरेट होता है और तब करंट होता है। EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाले फोर्स को EMF कहते हैं। आफ्टर EMF करंट विल प्रोड्यूस। लाइकवाइज मैग्नेटिक सर्किट में जो होता है, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स बहता है। फ्लक्स मतलब बहाव, मैग्नेटिक लाइंस का बहाव। मैग्नेटिक लाइंस अगर बहेंगी तो फिर क्या होगा, देयर वुड बी अ बल्जिंग। बल्जिंग मतलब भपका, मतलब एक फ्लो, एक पैसेज किसका, फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज शोन बाय phi, and then what is going to produce again the EMF is also going to produce by this is equal to d phi upon dt। ये भी होता है। Why this minus? Because rate of change of flux with respect to time is producing EMF. Why this minus sign? Because this is called Lenge's law। Lenge's law मतलब इस फ्लक्स के चेंज की वजह से EMF पैदा हो रहा है, लेकिन ये EMF अपोजिट डायरेक्शन में है इसके, इसीलिए इसे माइनस करा। तो इसका मतलब जो प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी है वो प्रोड्यूस करने वाली क्वांटिटी का अपोज कर रही है, यही लेंजेस लॉ है। तो इसलिए मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफार्मर है, जिसमें मैग्नेटिक सर्किट एंड मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या, डाईमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, देन व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक, व्हाट इज फेरी मैग्नेटिक, व्हाट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। सो दीज काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी में रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, सबसे ज्यादा कंडक्शन यानी टर्न ऑन या करंट फ्लो करना, एनर्जी का फ्लो करना किसी मटेरियल से कहलाता है।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स व्हाट कि इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा कर सकता है वाया द मीडियम मैग्नेटिक डोमेन। तो इस तरीके से इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे करंट है, करंट को अगर छुएंगे तो क्या या तो चिपक जाएगा या फिर रिपल्शन होगा, छटक जाएगा। तो ये तो मैग्नेट में होता है, इसका मतलब करंट इज हैविंग अ मैग्नेटिक बिहेवियर। लाइकवाइज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज गोइंग टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इज व्हाट अ स्टैटिक डिवाइस, अ स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो क्या करने जा रहा है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में रेट करेगा। अगर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज कन्वर्जन होगा तो उसे कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज होगा तो उसे कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो रेटिंग को कम ज़्यादा करने के लिए सब स्टेशन में जो लगते हैं वो ट्रांसफार्मर लगते हैं जगह जगह पर भी, और जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके आसपास भी जो है वो लगते हैं ट्रांसफार्मर है। इधर इट में भी सिंगल फेज, इधर इट में भी 3 फेज। ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है, और इसके बाद जो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी होता है, करंट ट्रांसफार्मर भी होता है, बहुत प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। नाउ आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स, आइडियल ट्रांसफार्मर हो सकते हैं जिनमें लॉसेस नहीं होते हैं, आउटपुट पूरा आता है, मैक्सिमाइजेशन होता है एफिशिएंसी में, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर लॉस होते हैं। ट्रांसफार्मर इज हैविंग कोर होती है ट्रांसफार्मर में, एक लैमिनेशन होता है, उसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, जिसे कई जगह पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में एक लेमिनेशन होता है, उसमें शॉर्टिंग नहीं होती है आपस में, तो इसीलिए इस तरीके से जो लेमिनेशन जो वाइंडिंग्स मतलब तार लपेटे रहना होता है, किसका, कॉपर का, तांबे का, और कई जगह एल्यूमिनियम के भी जो होता है इस तरीके से होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि मोस्टली कॉपर इज यूज्ड, इट इज हैविंग गुड नंबर ऑफ कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट सर्किट भी बनता है ट्रांसफार्मर का कि किस तरीके से प्राइमरी और हाई वोल्टेज साइड रेफर्ड टू सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज साइड रेफर्ड टू प्राइमरी, यानी प्राइमरी रेफर्ड टू सेकेंडरी और सेकेंडरी रेफर्ड टू प्राइमरी, इस तरीके से। और एक इक्विवेलेंट पहले सर्किट बनता है पूरा ट्रांसफार्मर में इस तरीके से, और फिर इस तरीके से रेफर्ड वाले सर्किट भी बनते हैं। दिस इज ऑल्सो विल डिस्कस लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर, क्योंकि एफिशिएंसी, रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज द वर्ड आउटपुट अपॉन इनपुट, कि कितना आउटपुट ट्रांसफार्मर में आया, चाहे वो स्टेप डाउन है तो कम वोल्टेज कितने आए, क्या कितनी थी, तो दोनों का रेशियो एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंट सिस्टम में 1 होगा, यानी एब्सोल्यूट टर्म्स में 100%, एब्सोल्यूट टर्म्स में 1 और परसेंटेज में 100% मैक्सिमम चीज़। रेगुलेशन इज व्हाट, रेगुलेशन मींस यही चीज़ें देखना, नियम देखना कि ट्रांसफार्मर जिस काम के लिए कर रहा है वो ट्रांसफार्मर पूरा हो रहा है या कितना एफिशिएंसी दे रहा है, व्हाटएवर एफिशिएंसी एंड व्हाटएवर रेटिंग्स एंड रेगुलेशन दैट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड इज कॉल्ड लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर। लॉसेज एवरीवेयर इज इन टर्म्स ऑफ पावर ओनली, पावर के टर्म्स में होता है लॉस, और जैसे तो लॉसेज को अगर कम होंगी तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ जाएगा। इट मीन्स दैट व्हाट, इसका मतलब ये है कि जैसे पहले पावर जनरेशन हुआ, पावर जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन इज देयर, तो पावर जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन कम रेटिंग पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कम रेटिंग पे करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचेगा ही क्या। इसीलिए इन बिटवीन देयर इज अ प्लेसिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर से कम वोल्टेज से हाई वोल्टेज में रेट किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके, और तब ट्रांसमिशन हो ताकि लॉसेस कम हो। इसलिए और फिर डिस्ट्रीब्यूशन साइड में सब स्टेशन में क्या लगा, ट्रांसफार्मर फिर लगाया जाता है, फिर उतारा जाता है, वोल्टेज को कम किया जाता है, स्टेप डाउन, फिर फर्दर सब स्टेशन होता है, फिर कम किया जाता है, और जिस तरीके से एडमिसिबल वोल्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस तक में जो है स्टेप डाउन किया जाता है, देन ओनली ट्रांसफार्मर इज व्हाट, ट्रांसफार्मर इज हैविंग व्हाट इट्स एप्लीकेशन। PMMC and MI instrument. PMMC is called permanent magnet moving coil and MI is called moving iron instrument. तो ये क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इनमें एक पॉइंटर, पॉइंटर मतलब सुई, जैसे घड़ी में होती है सुई और हिलती रहती है, चाहे वो आवर एंड हो, चाहे वो सेकंड एंड हो, चाहे वो मिनट एंड हो, तीनों एक साथ चलती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि मूवमेंट पता चलता है, और पता चलता है मेजरमेंट पता चलता है समय। ठीक इसी तरीके से करंट एंड वोल्टेज एंड पावर दैट हैज टू बी मेजर्ड। Current is measured by ammeter, voltage is measured by voltmeter, and power is measured by wattmeter, energy is measured by energy meter. Energy is equal to power into time. अगर पावर को समय के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कितना खर्चा पावर कितने समय में हुआ, तो वह एनर्जी है। जैसे घरों में एनर्जी मीटर लग रहते हैं, दैट में भी एनालॉग, दैट में भी ऑफ डिजिटल नेचर, आजकल स्मार्ट मीटर जैसे आ रहे हैं। तो PMMC और MI इंस्ट्रूमेंट यही करते हैं, मेजर करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको कंक्लूसिवली और समरली लें PMMC और MI इंस्ट्रूमेंट्स को, तो किसी भी जगह पर जो है अगर जैसे कोई करंट दिया है, अब सपोज सम करंट इज गेटिंग टू इंट्रोड्यूस, सम करंट इज गेटिंग टू इंट्रोड्यूस, लेट अस सपोज हियर वी विल डू like this here, if you will do like
हियर, इफ यू विल डू लाइक हियर, सम करंट इज गेटिंग टू इंड्यूस। तो सबसे पहले अगर किसी भी जगह पर करंट दिया तो डिफ्लेक्शन पैदा होगा, हिलेगा, पॉइंटर हिलेगा कि बताएगा कि करंट की प्रेजेंस हुई है, कोई एनर्जी इम्बॉडीड की गई है किसमें, इंस्ट्रूमेंट में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो उसके बाद डिफ्लेक्शन होगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क इज द रोटेशनल मोशन, जैसे फोर्स होता है लीनियर मोशन, टू एंड फ्रो, आगे पीछे मोशन, ठीक टॉर्क होता है घूमने वाला। किसी भी रोटेटिंग बॉडी में फोर्स जो है वो टॉर्क के रूप में पैदा होता है। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब ये है कि करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही डिफ्लेक्शन भी होगा। अब अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा हो गया है तो इसके प्रोपोर्शनल एक कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा होगा। इट मीन्स दैट if there is deflecting torque then controlling torque के प्रोपोर्शनल, और कंट्रोलिंग टॉर्क ऑलरेडी प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। मतलब जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा। मतलब कोई चीज़ आगे बढ़ती है, पॉइंटर आगे बढ़ता है तो विरोध भी होगा ना, एक्शन का रिएक्शन होगा। तो इसीलिए TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और TD जब TC के बराबर हो जाए, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाए तो आगे जो चलने वाला टॉर्क है और पीछे वाला, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे और पॉइंटर रुक जाएगा। पॉइंटर विल नॉट मूव व्हेन TD इज इक्वल टू TC। पॉइंटर विल नॉट मूव और एकदम से रीडिंग दिखा देगा स्केल में जो भी कुछ है। इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट, मतलब स्थिर अवस्था। तो फाइनली जो चीज़ निकल के आता है वो निकल के आता है कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब जितना ज़्यादा मीटर में, जितना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट में करंट दिया जाएगा उतना ही डिफ्लेक्शन होगा, ये कहता है PMMC इंस्ट्रूमेंट। सो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट if theta is directly proportional to I square, this is called by what, moving iron instrument। मतलब if there is a power 1 that is linear and if there is a power more than 1 that is non-linear, it means that there is a linear variation of deflection with respect to current in PMMC instrument, but in moving iron instrument there is a non-linear variation of what, deflection with respect to current. That is why theta is directly proportional to I square in case of MI instrument, in case of moving iron instrument, in case of PMMC instrument, there is what, theta is directly proportional to current. So this is all about these three units. Now what is the next unit we are going to study in electrical engineering? Basic electrical engineering is electrical machines. So electrical machines which are what, which are either motor or generator. मोटर में मोटरिंग एक्शन होगा और जनरेटर में जनरेटिंग एक्शन होगा। व्हाट इज मोटरिंग एक्शन नाउ? मोटरिंग एक्शन मीन्स कि किसी भी मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दिया जाए, ऊर्जा दिया जाए, एनर्जाइज किया जाए उसकी वाइंडिंग्स को, और फिर उसके बाद उसमें मैकेनिकल आउटपुट पैदा हो या फिर मैकेनिकल वर्क यानी कार्य पैदा हो। जो भी यांत्रिकीय कार्य है, मैकेनिकल कार्य है, वो जो कि सभी ने करना था तो अब वो मोटर करी। जैसे पानी को लिफ्ट करना तो पानी खुद ही उठाना था, लेकिन अब मोटर उठा रही। ज़्यादा पानी उठाना था इसलिए मोटर लगाई। और भी काम, बड़े बड़े ट्रॉलीज हैं, बड़े बड़े डिज़ाइनिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, कोई और बड़ा जो है डिज़ाइन है, कोई भी चीज़ है इस तरीके का बना हुआ तो ये मोटर के द्वारा उठाया जाता है। और इस लिफ्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो है इम्प्लीकेशन है किसी की मोटर्स की, ये भी मशीन है। और जनरेटर मतलब क्या है कि कोई ऑलरेडी फिजिकल फॉर्म में मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी इज देयर एंड दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं तो वो जनरेटिंग एक्शन है। और मोटरिंग एक्शन जो है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं तो मोटरिंग एक्शन है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स इज व्हाट, डीसी मशीन्स भी पढ़ेंगे इसमें, डीसी मशीन्स भी होती हैं और एसी मशीन्स भी होती हैं। डीसी मशीन्स में डीसी मोटर भी हो सकती है, डीसी जनरेटर भी हो सकता है। एसी मशीन्स में एसी मोटर भी हो सकता है, एसी जनरेटर भी हो सकता है। डीसी मशीन्स में जब इन सब में जब पढ़ेंगे तो मशीन में हमेशा दो चीज़ें जरूर रहती हैं, वो है रोटर और स्टेटर। रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। रोटर नाम ही है रोटर, तो इट मीन्स दैट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल मशीन इज कॉल्ड रोटर। बट व्हाट इज स्टेटर? स्टेटर इज द फिक्स्ड पार्ट। एंड अब इसमें दो तरीके की वाइंडिंग होती है इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग एंड व्हाट, फील्ड वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग होती है तो ये डिपेंड करता है कि मशीन का डिज़ाइन कैसा है, कि आर्मेचर वाइंडिंग कभी स्टेटर के साथ होती है, कभी रोटर के साथ होती है, और फील्ड वाइंडिंग मोस्टली कभी स्टेटर के साथ, ऐसे ही रोटर के साथ होती है। सो डीसी मशीन्स इज ऑल्सो हैविंग सम, वी विल स्टडी हियर इन दिस कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ द डीसी मशीन, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। तो टाइप्स डीसी मशीन का पढ़ेंगे कि क्या वो सीरीज है, क्या वो शंट है,
या वो सीरीज शंट है, कंपाउंडली एक्साइटेड है, किस तरीके से है, और या फिर इंडिपेंडेंट सोर्स से ऑपरेट होने वाले। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, मोटर के बारे में अगर बोल रहे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का जो है लॉन्ग शंट है, शॉर्ट शंट है और कंपाउंडेड है, किस तरीके की है, तो ये डीसी मोटर या डीसी मशीन के बारे में विल स्टडी। डायरेक्ट करंट मशीन और डीसी मशीन और डीसी मोटर, डीसी जनरेटर। So here the rotating magnetic field. What is rotating magnetic field? If it is going to rotate, let us suppose in case of 3-phase induction motor or single phase induction motor, अगर induction motor को पढ़े, let us suppose if we will discuss some induction motor, let us suppose here the induction motor is there, let us suppose here the induction motor is there, induction motor. So induction motor is having this part stator and this is what the rotor part, let us suppose, and 3 phase means 3 phase लगाए हैं, 1, 2 and 3 phase. Now they are going to energize here, and one here between the stator and the rotor there is a gap, there is a what, gap, और इस गैप में जहाँ रोटर तभी तो घूमेगा जब स्टेटर और रोटर के बीच में गैप हो, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड तैरता है इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसी को बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज व्हाई व्हाट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कैच करने की कोशिश, मतलब पीछा करने की कोशिश करता है कौन, रोटर, द रोटर। और जब जो है रोटर लगाता, और इसी वजह से जो होती है मशीन इज गोइंग टू व्हाट, मशीन इज गोइंग टू रन, तब मशीन जो होती है स्पीडली होती है या चलती है। तो अब इसमें एक क्वांटिटी और आती है, दैट इज कॉल्ड, अगर अभी सिंक्रोनस मशीन में पढ़ेंगे तो एक चीज और आती है, दैट इज कॉल्ड एनएस, सिंक्रोनस व्हाट, स्पीड, 120 f/p, दैट इज व्हाट 120 फ्रीक्वेंसी अपॉन पोल, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, क्योंकि मशीन में हमेशा पोल बनते हैं, 4 पोल मशीन है, 6 पोल मशीन है, 8 पोल मशीन है, कितने पोल मशीन है। सो लाइकवाइज, सो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द वन in which is going to rotate in between what, stator and the rotor, due to course of what, due to action of the energization of what, supply। तो इसीलिए जो है सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन, अब इंडक्शन फेज मोटर का एक एप्लीकेशन है बहुत बड़ा, और वो एप्लीकेशन है कि सारी इंडस्ट्रीज में, अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज में जो लगती है वो इंडक्शन मोटर ही है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वी विल आल्सो सी, एंड सिंक्रोनस मशीन वी विल आल्सो सी। सिंक्रोनस मशीन इफ is going to watch in terms of what, जनरेटर, तो उसे कहते हैं अल्टरनेटर। सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है वो अल्टरनेटर भी कहलाता है, और इस तरीके से सिंक्रोनस मोटर भी होता है, और इंडक्शन जनरेटर या इंडक्शन मोटर भी बोलेंगे। तो इस तरीके से जो है इंडक्शन जनरेटर विल आल्सो से, तो इस तरीके से जो है सिंक्रोनस मशीन का जो है, सिंक्रोनस मशीन जो होती है वो हाई रेटेड मशीन होती है, जो भी जनरेशन, पावर जनरेशन वगैरह पर ज़्यादातर लगी हुई है वो अल्टरनेटर यानी सिंक्रोनस जनरेटर दैट हैज टू बी इंस्टॉल्ड। सो लाइकवाइज वी आर गोइंग टू स्टडी, और द डिस्कशन वुड बी ऑन द व्हाट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स रिगार्डिंग डीसी मशीन, आइदर एसी मशीन, आइदर मोटरिंग एक्शन, आइदर जनरेटिंग एक्शन। मोटरिंग एक्शन में भी क्या होता है कि मोटरिंग एक्शन दैट हैज बीन व्हाट, दैट हैज बीन परफॉर्म्ड विद आइदर एसिलरेशन और डीएसिलरेशन। अब एक बार मोटरिंग एक्शन का मतलब है मशीन का चलना, एसिलरेशन देना, जैसे गाड़ी में एसिलरेशन देते हैं तो चलती है, और डीएसिलरेट मतलब रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकती है, व्हीकल रुकती है। तो ठीक इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेशन करेंगे तो देन वी विल डिस्कस, बट अभी क्या कर रहे हैं कि जैसे ही मोटरिंग, जैसे ही एसिलरेशन दे रहे हैं तो इट मींस दैट द मशीन इज गोइंग टू रन, एज वेल एज द ब्रेकिंग इज अप्लाइड, तो इसका मतलब व्हाट, द मशीन इज गोइंग टू, द मशीन एंड द इलेक्ट्रिकल मेथड्स इज गोइंग टू स्टॉप, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के टर्म्स में जब पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स क्या है, कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मशीन्स को और पावर सिस्टम को, जब पावर सिस्टम को और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से मिल करके जब किसी इलेक्ट्रिकल मशीन को चलाते हैं तो वही इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स कहलाता है। जिस समय पर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स वी विल डिस्कस, देन इट इज़ द व्हाट कोर्स और द डिपार्टमेंटल ऑल्सो, जैसे डिपार्टमेंटल कोर्स होता है तो वी विल ऑल्सो डिस्कस समटाइम समवेयर द इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव ऑल्सो, इलेक्टिव मोस्टली बिकॉज ओपन इलेक्टिव इज व्हाट रिगार्डिंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल मशीन, इफ यू विल कंसाइज अप टू हियर, द इलेक्ट्रिकल मशीन इज ऑफ आइदर मोटर और द जनरेटर, and we will discuss also the efficiency, the regulation, the losses and the tests, what is short circuit test, what is snubber. So likewise we will discuss what is the saturation, what is the saturation of transformer, and what is the what is called the inrush current in the transformer। जैसे ट्रांसफार्मर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा रेटिंग होती है, कई बार तो क्या होता है कि बंद करके, ऐसा भी करना पड़ सकता है, पड़ जाता है कि
हेल्दी सेक्शंस को कट ऑफ कर दिया और तब जो गर्मी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ट्रांसफार्मर में जिससे पानी भी डालना पड़ता, लेकिन वर्किंग कंडीशन में ट्रांसफार्मर में दिस इज नॉट एडवाइसेबल, या ऐसा होता ही नहीं कि पानी के साथ उसको क्या किया जाए, ठंडा या फिर हीट को कम। दैट इज द इनरश करंट कंडीशन। इनरश मतलब बहुत ज़्यादा करंट का आ जाना जिससे ट्रांसफार्मर जलने की डर रहते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर इज कॉस्टली, ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसीलिए प्रैक्टिकल टर्म्स में जब तक अप टू द लास्ट, जहाँ तक जो होता है कि सुधार करके या फिर डायग्नोस करके और ठीक करके मेंटेनेंस करके ही ट्रांसफार्मर को अप्लाई किया जाता है तो लगता है, अदरवाइज जो है ये। तो अभी ये देखा कि किस तरीके से कौन कौन से मॉड्यूल देख लिए, डीसी सर्किट, एसी सर्किट, और ये भी देखा यूनिट मैग्नेटिक सर्किट्स एंड ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स तक थे। अब एक और चीज जो वी विल डिस्कस हियर इन दिस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। अब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, जब कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चाहे वो होम अप्लायंसेस घरों में यूज़ करने के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस हो, उद्योगों में यूज़ करने के लिए, इंडस्ट्रीज फर्म्स में यूज़ करने को, प्रोप्राइटरशिप में यूज़ करने के लिए होगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और कमिश्निंग के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आजकल पार्ट है। जनरलाइज्ड लेआउट ऑफ पावर सिस्टम। अब लेआउट में तो क्या, सिंगल लाइन डायग्राम बनेगा, जनरेटर बनेगा, फिर बसेस बनेंगी, फिर ट्रांसमिशन लाइन बनेगी, फिर बस बनेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर लोड बनेगा, लोड फीडिंग बनेगी। तो इस तरीके से एक फ्लो बनेगा, एक सिंगल लाइन फ्लो बनेगा। देयर वुड बी अ सिंगल लाइन फ्लो ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू लास्ट वॉट कंजम्पशन पॉइंट। This is what the generalized layout of what power system. It means that the procedural steps or the procedural flow of power system for which the power is generated, either transmitted, either distributed, or by using active distribution system or whatsoever. वो तो फिर नई नई जितनी टेक्नोलॉजी लग जाए, we will discuss there in technical projects, in electrical electronics projects whatsoever, in renewable energy also. So likewise, this is what rating standards. व्हाट रेटिंग स्टैंडर्ड्स, रेटिंग का मतलब होता है वैल्यू। अब वोल्टेज की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू, करंट की, पावर की। सो दीज आर सपोज टू बी द रेटिंग स्टैंडर्ड्स, दीज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। मतलब किस मिनिमम और मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड रेंज। रेटिंग रेफर्स जनरली द रेंज ऑफ आइदर वोल्टेज, करंट एंड पावर। सो दैट इज व्हाट रेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ग्रिड। अब ग्रिड जनरली क्या होता है, ग्रिड क्या है, जहां से जनरेट हो रहा है अप टू द लास्ट कंजम्पशन तक, वो सारा का सारा पूरा एक जो स्केलेटन, जैसे शरीर है, मानव शरीर में क्या होता है, मानव शरीर में क्या होता है, ढांचा होता है, स्केलेटन होता है, ढांचा, हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन होता है। अस्थि पंजा, अस्थि मज्जा, जिसे अस्थि पंजर पूरा ऊपर से नीचे तक, जिसमें ये मांस वगैरह जो होता है ये सब टिका हुआ होता है, और तब जाकर के पूरा टिश्यूज हो गए और सेल्स हो गए, सेल्स के, और ये सबसे मिलकर के एक पूरी ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो क्योंकि एक स्केलेटन होता है, एक ढांचा होता है, कंकाल होता है, तो ठीक इसी तरीके से जो है एक जो है ग्रिड इज अ काइंड ऑफ अ स्केलेटन ऐसा समझ सकते हैं। और फिर उसमें जो भी चीज़ें एप्लीकेशन, टैपिंग, फीडिंग से और फीडर्स से जहाँ जहाँ पर भी एप्लीकेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, वहाँ पर आराम से जो है दैट इज गोइंग टू व्हाट, दैट इज गोइंग टू क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाता है, किसका, पावर का। तो ठीक इसी तरीके से दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्विच गियर, फ्यूजेज। अब स्विच गियर, फ्यूजेज एंड सर्किट ब्रेकर्स, दे आर कॉल्ड द पावर प्रोडक्शन डिवाइसेस। पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का पार्ट है। हियर वी हैव द इलेक्ट्रिकल जनरेशन पोर्शन, इंस्टॉलेशन पोर्शन, कमिश्निंग पोर्शन, देन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑल्सो, देन पावर ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन पोर्शन, देन व्हाट, द काइंड ऑफ व्हाट, एंड देन प्रोटेक्शन और द मेंटेनेंस पोर्शन, विच इज कॉल्ड स्विच गियर, जैसे स्विच गियर कहते हैं। और स्विच गियर मतलब स्विच में जो है किस तरीके से गियरिंग करना, कम ज़्यादा स्पीडिंग करना। गियर होता है ना, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके गियर लगाते हैं तो स्पीड स्मूथ होती जाती है, छोटे छोटे बड़े बड़े गियर पड़ते जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से गियरिंग मैकेनिज्म क्या होगा, फ्यूजेस। जब कभी भी कहीं पर ऐसे फॉल्ट आ जाए, कोई भी फॉल्ट आ जाए पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो क्या करते हैं, फ्यूज एक्टिव हो जाते हैं, फ्यूज बर्न हो जाते हैं, घरों में फ्यूज लगे रहते हैं, जल जाते हैं, ताकि वो जो अनहेल्दी सेक्शन है वो खुद ही आइसोलेट हो जाए, किससे, हेल्दी सेक्शन से, पावर सिस्टम से। तो ठीक इसी तरीके से सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, जो भी अनहेल्दी सेक्शन है उसके सर्किट से ब्रेक कर देते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और एमसीबी विच इज़ कॉल्ड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जैसे घरों में लगे रहते हैं कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगे रहते हैं, जहाँ पे भी रीडिंग लेते हैं वहाँ पे। तो कैसे कि अगर ज़्यादा लोड ऑपरेट होगा और ऐसा लगेगा कि अब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बन सकती है, मतलब
प्रोटेक्शन फेलियर हो सकता है कि ज़्यादा आग लगने की या कुछ ऐसा ओवरहीट होने की, लोड डैमेज होने की, जो लोड मीन्स विच इज़ कंज्यूमिंग पावर, तो वह सब जितने पंखे हैं, लाइट्स वगैरह और भी चीज़ें हैं, जो भी अप्लाइंसेज हैं, अगर डोमेस्टिक में है तो इंडस्ट्रियल में भी ठीक ऐसे ही है ज़्यादा रेटिंग के साथ। अगर ऐसा रहता है कि इन केस अगर ये डैमेज हो सकते हैं तो एमसीबी इज़ गोइंग टू ट्रिप, और फिर उसके बाद देखा जाता है। और नेक्स्ट इज व्हाट, वायर्स एंड केबल्स। कौन कौन से वायर्स हैं, केबल्स हैं, जैसे बंडल्ड कंडक्टर्स हैं ट्रांसमिशन के लिए, कौन कौन से वायर होंगे, और वायर के ऊपर जो इंसुलेशन की शीथ लगी होगी, जो ये ऊपर लगा होता है और अंदर से कंडक्टर होता है तांबे का, इस तरीके से। नेक्स्ट द अर्थिंग। व्हाई अर्थिंग इज इम्पॉर्टेंट? प्रॉपर अर्थिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, फॉर द व्हाट कंजम्पशन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ एनी ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हाट कंपोनेंट ऑफ द यूटिलिटी ऑल्सो. So what earthing is important. Now that there is a bit, we will also discuss the fundamental comparison between earthing and ground also. किस तरीके से कोई चीज़ क्या है कि a neutral path is returning path of the current that is supposed to be something like a neutral, ground, earthing. There is a comparison also. We will also discuss. And what next, the batteries. Why batteries is used? Because कि अगर ऑफ टाइम में, जैसे ऑन ग्रिड है कि जब जनरेशन हो रहा है, लगातार लाइट आई हुई है और सब कुछ ठीक हो रहा है, या फिर पावर अगर शॉर्टेज नहीं, आउटेज नहीं हुआ है, जैसा कभी हो जाता है, होना तो नहीं चाहिए था, तो ठीक इसी तरीके से जो है पावर अगर लगातार फ्लो कर रहा है तो वो क्या है, ऑन ग्रिड है। अगर बंद हो गया, कहीं पे सप्लाई बंद हो गई, बंद करनी पड़ी फॉल्ट आने से, जो है अगर करनी पड़ी, तो वो क्या है, तो उस समय पर ऑफ ग्रिड बैटरीज ऑपरेट हो सकते हैं, जैसे घरों में लगा हुआ इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर इज अप्लाइड ओवर हियर। तो इसी तरीके से जो है दिस ऑल कम्स अंडर व्हाट, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। और इसमें ये भी आता है कि एक पावर आउटेज मतलब बिजली जाने का होता है कि पावर एक मिनिमम समय तक जा सकती है, क्योंकि 24/7 एक ऑल टाइम्स अवेलेबिलिटी ऑफ पावर शुड बी देयर। क्योंकि जब कभी भी एक नेशनल ग्रिड या फिर एक स्टेट ग्रिड बनता है, या फिर जब कभी भी ये बनता है, तो इसलिए बनता है, इसी उद्देश्य से बनता है, इसी फंक्शन और वर्किंग से बनता है कि बिजली और लाइट जो है, पावर जो है वो कट नहीं होगी, आउटेज नहीं होगी, एटलीस्ट वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होगी जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स होते हैं। तो इसीलिए जो है इस तरीके से होने पर, और वैसे सभी जगह नहीं होगी, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं डोमेस्टिक चीज़ें। हर किसी का वर्क जो करना चाहते हैं, वर्थ और जो है आइडलनेस, यानी खाली सोना फिरना आ जाता है, क्योंकि कई जगह पर रात को तो बिना पावर के होता नहीं, बिना बिजली के होता कहाँ है। और एग्रीकल्चरल वर्क, इंडस्ट्रियल वर्क, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके से। और वन मोर थिंग इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पावर इकोनॉमिक्स। पावर इकोनॉमिक्स भी इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी भी चीज़ को पावर अगर बहुत ज़्यादा यूनिट है, पर यूनिट का जो बिजली का बिल अगर हद से ज़्यादा है, तो ऐसे में तो इकोनॉमी की पावर है ही नहीं। तो इसीलिए जो है इस तरीके से लिमिट लगाना कि किस तरीके से पावर बढ़ेगी, तो किस हद तक बढ़ेगी पर यूनिट जो है कि क्या कॉस्ट होगी, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एप्लीकेशन और द इकोनॉमिक रिलायबल पावर सप्लाई, दैट इज कॉल्ड। तो इस तरीके से जो कि एक जो है किसी भी सिटीजन्स का जो होता है वो क्या होता है, जरूरी होता है, उसके लिए एप्लीकेशन जरूरी है ऐसी जो। सो दिस ऑल टर्म्स अंडर व्हाट, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वी विल डिस्कस हियर वन बाय वन, एंड इतना सारा तो डिस्कशन कर ही लिया, लेकिन जो वन बाय वन मैथमेटिकल वी विल आल्सो डिस्कस बाय ग्राफ्स एंड बाय आल्सो द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन विल डू। बट और वन मोर टाइम, और जो है कि इसमें एप्लीकेशन भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, क्या क्या अप्लाई होता है, क्या डिजायर्ड है और क्या है, कैसे चीज़ों को मीट किया जा सकता है और क्या कुछ होगा। तो क्योंकि इन्हीं सबसे जो क्या होता है कि चीज़ों में फिर रिसर्च भी है, पेटेंट भी लिख रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, और न जाने फिर क्या कुछ हो रहा है, इन्वेंशंस भी हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें। क्योंकि फंडामेंटल्स ही जो होते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज व्हाट दिस इज द फंडामेंटल कोर्स। एंड अगर यही फंडामेंटल विद रिस्पेक्ट टू, अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ऐसे बेसिक मैकेनिकल है फंडामेंटल में, ऐसे सिविल है, तो इस तरीके से ऐसे कंप्यूटर साइंस है, जिस भी तरीके का जो फंडामेंटल है, हियर इफ यू आर कंसाइज, इफ यू आर व्हाट लिमिटिंग अप टू हियर, अगर यहाँ फोकस करें जैसे पढ़ रहे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस कोर्स मॉड्यूल।